biggest producer of hydropower in India. It is round about 12,000 crore, and we are trying to see wherever we can modulate and tinker with it so that we get in people. But to waive off the tax, which Sri Lanka or Thailand is. We are trying to ease it, and we are forming a investment bureau that has been set by Nazim ji for infrastructure development of CISA support related expenditure out of the 73 crore has been released. Thank you very much for your time. Happy to answer any questions later. Thank you. Facilitate the movement of goods and people, attract investments and promote industrial growth. Developing robust road infrastructure will enhance connectivity within the state and improve access to remote areas, enabling industries to expand their operation and reach new markets. For which I would like to also add that under the Public Works Department, there is a corporation, Road Development Corporation, which is particularly looking after development of road and infrastructure in the industrial segment, whether it is in Baddi, Buratwala area or Kalaram area or in Una. And we are constantly working on the development of road infrastructure in these industrial belts. In the times to come also, I would welcome members from the CII that we can have constructive talks about how infrastructure can be created there and how it can be improvised. And in some segments, particularly in the Nalagarh, Baddi, the four-laning is also happening in that area. I am constantly in touch with the project directors and officers of NHAI, and whatever best can be done for infrastructure development in that industrial segment is also being undertaken by us. So that is something that is a topmost priority for us. Other than that, the development of roads in the rural sector of Himachal Pradesh is also very important. As far as industries is concerned, though we understand that as if now the industrial setup is only confined to few segments of the state. But it is important for us that every section and every area of the state gets equal opportunities. For that, we are giving great importance to road infrastructure in the rural areas. For this, the new PAMGSY, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana's third phase, ambitious third phase I would say, has started in the state of Himachal Pradesh, in which recently I had the honor of meeting the Rural Development Minister of Government of India, and we are happy. I am happy to announce that we have had a sanction of around 2,600 crores for development of around 2,600 new kilometers roads in the state of Himachal Pradesh, and we are wanting to club that with sustainable development. Now I have given special instructions to my department, which is also a mandate from the Rural Development Department, that out of this 2,600 kilometers roads that we are building in the state, out of that, on a pilot project, 600 kilometer project is being undertaken under a new technology, that is FDR technology, fixed depth reclamation. Under which has acquired land in Haroli, and similarly we have leveled the land for this जिस तरह से इंडस्ट्री प्रमोशन को लेकर आपने ब्यूरो बनाने की भी बात की है, लैंड बैंक बनाने की बात की है, क्या स्थिति है? आज जो है इकोनॉमिक समिट की मीटिंग जो है CII द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे गगन कपूर जी का कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ की, और हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं टॉप के हैं, वो आज सब इसमें समिट में उपस्थित रहे, और एक हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। उनकी जो समस्याएं हैं हमने वो सुनी है, और बहुत सारी बातें जो है सरकार के बिहाफ पे मैंने उनको एश्योर किया है ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, कि मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जो भी मदद हिमाचल सरकार द्वारा होगी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए,
इंडस्ट्री की जो दिक्कत होगी उसका हम समाधान करेंगे। एक बहुत सार्थक चर्चा और एक बहुत लंबी चर्चा हुई है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी उपस्थित रहे हैं। हमने सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं और हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में नई इन्वेस्टमेंट आए, नए लोग आए और जो पुराने लोग जो हिमाचल प्रदेश में उद्योगपति यहाँ पे लगे हुए हैं उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पे उनको जो है नई इंसेंटिव्स और नई पॉलिसी उनके लिए भी जो है हम लाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे जो 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, बल ड्रग पार्क और मेडिसिनल डिवाइस पार्क है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी बहुत जल्दी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में और इन्वेस्टमेंट आए। अभी पिछले 1 साल में जब से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कोई 4,500 करोड़ रुपए का जो है वो MOUs हमने जो है वो अभी सिंगल विंडो में उसको क्लियरेंस किया है। और जो बल ड्रग पार्क है उसके लिए हमने कोई 3500 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। तो लगभग पिछले 1 साल में हमने कोई 10,000 करोड़ रुपए के जो है MOU साइन किए हैं। पिछली सरकार द्वारा MOU बहुत साइन किए गए थे, उनको मॉनिटर करके हमने उनमें से बहुत सारे लोगों को उनकी जो दिक्कतें थी उनको बुला करके, उनको पूछ करके, उनके साथ मीटिंग करके उनके जो NOCs थे उनको कहाँ दिक्कत थी हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की और हमने उन्हें कहा है कि आप हिमाचल प्रदेश में आओ, अपने उद्योग को स्थापित करो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एक नौकरियों के मामले में एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर नए उद्योग आएँ और पुराने उद्योग टिके रहे तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है वो रोज़गार जो है वो मिलेगा। जिस तरह से हिमाचल हाई कमिश्नर नहीं, अभी हमारा एक बहुत लंबा चर्चा हुई है। वी वांट दैट हिमाचल प्रदेश में वी वांट टू एक हिमाचल प्रदेश ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल प्रदेश है। तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं जो हैजरस ना हो, जो पॉल्यूशन कम फैलाए। और ख़ास करके जैसे हमारे शिमला है, वहाँ हमने मुख्यमंत्री जी ने जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ पूरी 100% कर दी है। अभी एक नई स्कीम के तहत जो है 500 अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनको 500 गाड़ियाँ जो है सरकार जो है उनसे ई-टैक्सी हायर करके उनको देगी और उनको लगभग कोई 70,000 रुपये महीने के रूप में जो है उनको दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का जो वातावरण है, हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है वो ना ख़राब हो, इसके लिए जो है सरकार द्वारा और विशेष करके मुख्यमंत्री द्वारा जो है बहुत सारी स्कीम्स जो है लॉन्च की गई है। सर, इंडस्ट्रीज प्लान कर रही हैं सर, किस तरह से उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा, चाहे नेस्ले की बात की जाए या फिर अन्य कंपनीज की, क्योंकि जो वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज है वो छोड़ने की बात की। नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्री प्लान नहीं कर रही है। ये कहना जो है कि प्लान कर रही है वो गलत है। ठीक है, एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का ऐसा होता है कि हर साल कई इंडस्ट्रीज़ जो इंसेंटिव्स लेने के लिए आते हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी लेने के लिए आते हैं, और जब उनके इंसेंटिव का फेज़ ख़त्म होता है तो फैक्ट्री जो है वो बंद करके चले जाते हैं। तो इस तरह का जो प्लान है, छोटा मोटा प्लान है, वो हर समय हर सरकार में और हर साल जो है वो होता रहता है। मगर जो बड़े हाउसेस हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश से कोई भी यहाँ से नहीं गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर।